واضح رہے مدرسہ تعلیم القرآن گور کے تعلق افضل پور ضلع گلبرگہ کی زمین حافظ محی الدین صاحب کے والد محترم جناب سیف الندی مرحوم نے حافظ محی الدین صاحب کے حوالے کرتے ہوئے ان کے نام پر بھی کر دیا۔ حافظ محی الدین صاحب نے اپنی بڑی کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ اور بڑی قربانیوں کے ساتھ سرزمین پر الحمدللہ ایک مسجد اور مدرسہ بھی تعمیر فرمایا۔ اس مدرسے تنگ بنیاد 27 ستمبر 2011 حضرت مولانا مفتی عبدالباری قاسمی دامت برکاتہم مدرسہ قاسم علوم آشٹا مہاراشٹر کے ہاتھوں میں عمل میں آئی۔ 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر مدرسے کے طلباء اور طالبات نے یوم جمہوریہ کے موقع سے بہت ساری تقاریر پیش فرمائی۔ الحمدللہ اس اجلاس میں مشہور معروف علماء اکرام نے شرکت فرمائی۔ شہر گلبرگہ کے مشہور معروف علماء اکرام میں حضرت مولانا عبدالوحید صاحب مفتاحی دامت برکاتہم بانی و محتمیم مدرسہ جامعۃ الصالحات للبنات و صدر جمعیت علماء ضلع گلبرگہ کی صدارت میں یہ اجلاس عام منعقد کیا گیا، اور شہر گلبرگہ سے آنے والے علماء کرام نے حضرت مولانا غوث الدین صاحب قاسمی صدر ملی کونسل گلبرگہ، حضرت مولانا شفیق احمد صاحب قاسمی سیکریٹری جمعیت علماء گلبرگہ، مولانا الیاس صاحب رشادی امام و خطیب جامع مسجد محبس گلبرگہ، حضرت مولانا عتیق الرحمان اشرفی صاحب دامت برکاتہم قومی جنرل سیکریٹری آل انڈیا امام کونسل گلبرگہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رشادی زونل صدر گوا مہاراشٹر گجرات گلبرگہ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب نظامی امام کونسل گلبرگہ، حضرت مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب قاسمی صدر علماء کمیٹی انڈی، اور شہر بیجاپور سے تشریف لانے والے علماء کرام میں حضرت مولانا شاکر صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء بیجاپور نے بھی شرکت فرمائی، اور علماء دین میں شرکت کرنے والوں میں جناب متین پٹیل صاحب سابق ZP ممبر افضل پور اور بہت سارے علماء دین نے اس اجلاس میں شرکت فرمائی۔ الحمدللہ اس اجلاس سے برادران وطن بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے بھی اس اجلاس کے اختتام پر وضاحتی بیان بھی دیا اور اپنی خوش دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس مدرسے سے بڑی محبتوں کا ثبوت دیا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لائے تشریف دنیا میں خیر ہوا، حق و باطل ہوا منے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگا، آئے جب مصطفیٰ منے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، بھیگی بھیگی سی لگتی تھی اس کی زنا، چاند جب تک رہا منے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر ہوا، حق و باطل ہوا منے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے،
سب کو اس یوم جمہوریہ کی تقریب کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام و اساتذہ اکرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی جس کا ترجمہ یہ ہے، وطن کی محبت ایمان میں سے ہے، یعنی وطن سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہے ہم سب کا بچا لو اسے۔ محترم حضرات، ہمارے ملک ہندوستان انگریزوں کے غلامی سے 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا، لیکن ہمارا آزاد بھارت کا کوئی اپنا قانون نہ تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے اور اس کے دستور کو مکمل کرنے کے لیے دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ہمارے ملک کا قانون 26 نومبر 1949 کو بن کر تیار ہو گیا تھا۔ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ। ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 73 ವರ್ಷಗಳ ಹೊರಳುವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿದ್ದರು। ಭಾರತೀಯರ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 73 ವರ್ಷಗಳು ಹೊರಳುವೆ। ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ। अपना झंडा हमें क्यों न प्यारा लगे, झंडा अपना है कौमी अलामत, सुनो तुम इसे एकता की निशानी कहो, सबसे अच्छा लगे सबसे न्यारा लगे, अपना झंडा हमें क्यों न प्यारा लगे, ये वतन दोस्ती की निशानी भी है और फख्रे वतन की कहानी भी है, हिंदियों का हंसी एक सुहाना लगे, अपना झंडा हमें क्यों न प्यारा लगे, ये है
नजारा है मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। आज बहुत खुशी होती है ಈ छोटे ವಿಲೇಜ್ में ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಣ ಬೆಳಬೇಕಾತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಬೇಕಾದ ಜನ ಅದಾರ ಗೌರ್ ಜನ ಯಾವತ್ತು ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಫಜಾಪುರ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗೌರ್ ಕೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದಾರ ಪೂಜಾರ್ ಮುತ್ತಾರ ಹಿಂಗ್ ಕೂತಾರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೇಬಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಚಾಣನ ಕೊಡೋದಾಗ ಈ ರೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಊರ್ ಜನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರ ಬಹಳ ಜನ ನನಗ ಪರಿಚಯ ಇದಾರ ಯಾಕೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ ಜೋಡಿ ಇದ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಹೊರಾನ ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರ ಏನ ನಾವು ಹಿಂದಿರ್ತೇವೆ ಅಫಜಲ್ಪುರ ನೀವೆಲ್ಲ ಊರು ಜನನೇ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೌರ್ ಕೇರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದ ಅದು बड़ा नमक संतोष अनस्त क्या मालूम है सब क्यों बोले तो हम एक छोटे विलेज में भी हिंदू मुस्लिम भाई लोग बहुत जॉइंट है यहाँ पे कभी भी हमारे साथ भी कभी नहीं छोड़े वो लोग चुनाव में होंगे या हर चीज में साथ मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ चल दीन की तबलीग में चलने का मजा है अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल दीन की तबलीग में चलने का मजा है अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल दीन की तबलीग में चलने का मजा है अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ
की आजादी को रोकने के लिए ब्रिटिश ने, अंग्रेज ने हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की बड़ी कोशिश किया। कभी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, कभी मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर देते। हमारे देश के बड़े बड़े हिंदू मुसलमान नेताओं ने, उलमा ने, साधु संतों और पंडितों ने अंग्रेज की इस चाल को समझा और सब हिंदू मुसलमान मिलकर एक होकर आजादी की लड़ाई लड़े। तब जाकर के 15 अगस्त 47 को यह देश आजाद हुआ। तमाम हिंदू और मुसलमान भाई और बहनें, मैं सबसे पहले जो है आप लोगों का शुक्र अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो है अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे कहने पर जो है लब्बैक कहते हुए आ गए। और उसके अलावा हमारे जो उलमाए कराम हैं और हमारे ग्राम पंचायत के जो है मेंबर्स हैं और आजू बाजू के जितने भी लोग आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर, मैं उनके लिए जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। क्योंकि एक खेत का माहौल है और हर एक लिए आना बोले तो जो है एक मोहब्बत है हमसे, इसलिए जो है वक्त निकाल कर आए। मेरे भाइयों, ये मदरसा बहुत हालात के साथ जो है शुरू हुआ। मैं जो है देहातों में जाता था, कभी जो है साइकिल से जाता था, वहां पर मकतब पढ़ा के आता था, कभी जो है पैदल जाता था। उसके बाद जो है तेलुनगी बोल के गांव है, वहां के लोग भी आए हैं, मुझे जानते हैं वो लोग। वहां पर भी जो है मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। 100 से 150 बच्चे जो है मकतब में आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उलमाए कराम के मशवरे से और पूरे जो है हमारे अफजलपुर के उलमाए कराम के मशवरे से हमारे गांव के अंदर जो है मदरसा शुरू हुआ। और जब से मदरसा शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह कामयाबी दिया। हाँ, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गांव के अंदर जो है सब लोगों को लेकर चलते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे एसटी हो, सब लोगों को जो है हम प्यार, मोहब्बत, हिकमत, भाईचारे से जो है लेकर हम चलते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग जो है हमारा साथ देते हैं। الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آج الحمدللہ گور کے گاؤں کے اندر ایک دینی ادارہ ہے جہاں کے ذمہ دار حافظ محی الدین صاحب ہیں. انہوں نے یوم جمہوریہ کے طور پر ایک پروگرام رکھا جس کے اندر بچے اور بچیاں بہت شاندار انداز میں انہوں نے ایک پروگرام کو پیش کیا ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی الحمدللہ اس بھارت جیسے ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس ملک کی مٹی سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے آب و ہوا سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے ہر وہ گیت سے بھی محبت کرتے ہیں جس کے اندر ملک کی محبت جھلکتی ہے. اور الحمدللہ پورے ہندوستان کے اندر آل انڈیا امامس کونسل نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ ملک بچاؤ دستور بچاؤ، ہر جگہ یوم جمہوریہ مناؤ. تو الحمدللہ یہاں کے ادارے میں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرناٹک کے اندر بھی بہت سارے اداروں کے اندر یوم جمہوریہ منایا گیا ہے اور انشاءاللہ ہم مناتے رہیں گے. میں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم کبھی رکنے والے نہیں ہیں، چاہے ہم ہو یا ہماری آنے والی نسلیں ہوں، ان کے اندر ہم آئین اور دستور کی حفاظت اور یوم جمہوریہ کا جشن منانے کا ہم ان کو یہ پیغام دے کر جائیں گے اور آخری دم تک دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ آج جو ہے ایک اہم پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملا.
हाफिज़ मोहिउद्दीन साहब की मेहनतों को देखकर दिल बाग बाग हुआ, बहुत खुशी हुई, दिल से दुआएं निकली उनके लिए। हम उनके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला नज़र बस से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। मदरसा तालीमुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मदरसा है तकरीबन चंद साल पहले हम यहाँ आए थे, बहुत ही जंगल व बयाबान की शक्ल में था। आज ये जंगल व बयाबान जाकर जो है गुलिस्तान की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। तो इस मदरसे तालीमुल कुरान के लिए हाफिज़ मोहिउद्दीन साहब की खिदमत काबिल फ़ख्र हैं, काबिल तक़लीद हैं, काबिल नमूना हैं। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल की जानिब से उनकी खिदमत को हम कबूल करते हुए, सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद देते हैं। आज मदरसा तालीमुल कुरान के अंदर यौम जमहूरिया मनाया गया, जिसके अंदर बहुत सारे तलबा ने मुख्तलिफ़ उन्वानात में बयानात भी किए और प्रोग्राम को भी पेश किया। बहुत ही खूबसूरत मंज़र नज़र आया। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी इस मदरसे के अंदर आए थे। तो हमें हाफिज़ मोहिउद्दीन साहब को मुबारकबाद देते हैं, इसलिए कि ऐसे जो प्रोग्राम होना चाहिए और उलमा ये किराम और जो है हमारे मासूम बच्चों के अंदर हिंदुस्तान की यौम जमहूरिया की तारीख़ को दोहराना पड़ेगा, कि इसलिए कि ये मुल्क अब हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान के संविधान को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही है और मुसलमानों पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। जबकि उस परचम के अंदर 3 कलर हैं, उसके अंदर जो सबसे निचला कलर हरा कलर है वो हिंदुस्तान का और मुसलमानों का है। ये जो सबसे नीचे होता है वो सबसे जिसका पल्ला भारी होता है वही नीचे होता है। हम बुनियाद हैं, दीवार और छत हैं, तो लिहाजा हमारी बुनियाद को जो है अगर तोड़ने की कोशिश की गई तो फिर जो है छत और दीवारें भी बाकी नहीं रह सकती है। हम ऑल इंडिया इमाम कौंसिल से यहाँ पर हाफिज़ मोहिउद्दीन साहब को मुबारकबाद देते हैं और यहाँ के बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है वो भी काबिल मुबारकबाद है। सबसे पहले तो आज माशाअल्लाह 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तालीमुल कुरान गौरके में आना हुआ। बड़ी मसरत और ख़ुशी हुई यहाँ के बच्चों की, जो यहाँ पर प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया है। अल्लाह ताला हाफिज़ मोहिउद्दीन साहब को और दीगर ज़िम्मेदारान को, असातिज़ा इकराम को, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह हाफिज़ मोहिउद्दीन साहब को हम 10-15 साल से जानते हैं, बड़ी खिदमत हैं। असल में क्या है, ताल्लुक़ात में और शहरों वग़ैरह में खिदमत करना बहुत आसान है, लेकिन देहात में रहकर बिल्कुल जो सहूलतें और असबाब से दूर रहकर मदरसा चलाना और एक इदारे को चलाना बड़ा मुश्किल है। इसके बावजूद माशाअल्लाह हाफिज़ मोहिउद्दीन साहब और उनकी टीम बड़ी मेहनतों और मशक्क़तों से यहाँ पर है। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मैं मोहम्मद फ़याज़ जामई हूँ, अफजलपुर का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त से ये मदरसा क़ायम हुआ है उस वक्त से मैं इस मदरसे से वाकिफ़ हूँ और मदरसे के ज़िम्मेदारों से वाकिफ़ हूँ। ज़िम्मेदार बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ इस मदरसे के तालिबात और तलबा को तालीम देते हैं और मदरसे की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इस मदरसे को और भी तरक्की अता फरमाए। तकरीबन यहाँ पर 50 बच्चों का दाखिला है। तकरीबन 70 से ज़ायद तालिबात यानी लड़कियाँ यहाँ पर इल्म दीन हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को चलाने वाले हाफिज़ मोहिउद्दीन साहब हैं। ये इस देहात के अंदर, हालांकि इस देहात के अंदर आने जाने का बड़ा मसला, पेचीदा मसला है, लेकिन इस गांव के अंदर बड़ी ही मशक्क़तों के साथ, बड़ी ही मेहनतों के साथ इस इदारे को चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ देते हैं हाफिज़ साहब को, अल्लाह ताला इनकी काविशों को, इनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। और इसी तरीक़े से हम दुआ भी देते हैं अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्यात से नवाजे। मैं अपील और दरख्वास्त भी करता हूँ, जो हज़रात इस इदारे को नहीं जानते हैं, इस इदारे को आना चाहिए। मदरसों से हमारी मोहब्बत उल्फत होना चाहिए और यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है और कितने तालिबात और तलबा अब तक हिफ्ज़ कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार हुआ, जिसमें बहुत सारे बिरादरान वतन भी शरीक थे और बहुत सारे बिरादरान वतन ने इस इदारे से ताल्लुक़ भी है। हम दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला
हम सबको मिलजुल कर इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मुल्क हमारा मुल्क है, इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, हम सब यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। बस यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्यात से नवाजे और हाफिज़ साहब और मौल्लिमात और मौल्लिमीन जितने यहाँ पर पढ़ते और पढ़ाते हैं इन सब को अल्लाह ताला तरक्यात से नवाजे और साथ साथ मिलजुल कर काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मौलाना शफीक अहमद कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला गुलबर्गा। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे तालीमुल कुरान गौर के अंदर 2011 के अंदर ये मुनक़िद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कई तलबा यहाँ हुफ़ाज़ बनकर जो है फ़राग़त हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 तलबा इस इदारे के अंदर ज़ेर तालीम हैं। आज 26 जनवरी को यहाँ पर प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ शिरकत का मौका मिला और इस प्रोग्राम को देखकर हमें बहुत खुशी और मसरत महसूस हुई और मैं इस मदरसे के नाज़िम व मोहतमिम हाफिज़ मोहिद्दीन साहब को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और इसी तरह अहले खैर हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इस मदरसे का वक्तन फ़वक्तन जो है ताउन फरमाए और इसके लिए दुआएं करते रहे ता क़यामत तक ये मदरसा जारी और सारी रहे और इसके लिए हमेशा जो है अपने अहले खैर हज़रात अपने ताउन में इसको शामिल रखें और ये देहात के अंदर मदरसा चल रहा है, बड़ी मुश्किल और मशक्क़तों के साथ चल रहा है और इसी यहाँ तालीमुल कुरान के साथ साथ दाई हलीमा लिल बनात का इदारा भी है जिसके अंदर 70 लड़कियाँ तालिबात जो है ज़ेर तालीम है और इसका भी बड़ा ख़र्च है कि आप लोगों के ताउन से ही ये मदरसे चलते हैं। आप हज़रात से गुजारिश की जाती है कि इस मदरसे का भरपूर ताउन फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इस मदरसे के ताउन करने वालों को और इस मदरसे में मौलिम और मौलिमात के पढ़ाने वालों को और चलाने वालों की भरपूर मदद अता फरमाए। मैं गौर गाँव का सदस्य हूँ, ग्राम पंचायत भंकली का, और हमारे गांव में मदरसा 5-6 साल से अपने खुद के मेहनत से चला रहे हैं और हमारे को कुछ गवर्नमेंट का भी व्यवस्था नहीं है और हमारे पास 100 बच्चे भी पढ़ रहे हैं और सब दिन के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। असल ये है कि जो यहाँ फ़िलहाल जो इदारा नज़र आ रहा है तो ये शक्ल तो तकरीबन नहीं थी। मैं उस वक्त से मोहिउद्दीन हाफिज़ साहब को पहचानता हूँ और उनकी खिदमत को भी जानता हूँ। मैं उस वक्त जबकि मदरसा जो है मस्जिद गांव की जो मस्जिद में मदरसा चलता था उस वक्त से क्या उससे पहले से भी जानता हूँ मैं। बड़ी खिदमत हैं हाफिज़ साहब की, हमारे मोहिउद्दीन हाफिज़ साहब की। तालीमी एतबार से बहुत मेहनत करें उन्होंने, बच्चों को देहात से ला कर जो है खुद के खर्च से पेट्रोल का खर्च करके गाड़ी करके ला के यहाँ जो है बच्चों को पढ़ाएं। अल्लाह और रसूल की तालीमात को ज़िंदगियों में अपनाए हुए हैं। ये मदरसे की मेहनतों का नतीजा है। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमाम कौंसिल की पूरी टीम हमारे साथ है। तमाम ही जो पिछली जो जाते हैं सबकी तरफ से एक मुहिम चल रही है कि भाई मुल्क को बचाओ, मुल्क बचाओ, दस्तूर बचाओ। दस्तूर बचाएंगे तो मुल्क बचेगा। तो मुल्क को बचाने के लिए दस्तूर बचाना बहुत ज़रूरी है। मुल्क के जो दस्तूर और कानून है इसको बदलने की पूरी कोशिश चल रही है फ़िलहाल। तो ये बताना मकसद था कि मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों में, मदारिस वालों में और उलमा में, ख़ासकर ये मौलाना लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि हम मुल्क से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि अपनी जान से भी ज़्यादा हम मुल्क से मोहब्बत रखते हैं। ये बताने के लिए ये प्रोग्राम किया गया और बल्कि हम ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भाई भी हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी मुतासिर हुए। तो हम पूरे मुल्क में ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो बाकी रहे। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮದರ್ಸಾ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು। ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ದೀನ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವರು
ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರು ಸಮಬಾಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸರ್ವರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕುಗ್ರಾಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ 50ರಿಂದ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮದರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾವುವು, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಮದರ್ಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಿ. ಇವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮದರ್ಸಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿ इडी देश के संदेशವನ್ನು ನೀಡಲಿ। पाक परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको यहाँ पे 26 जनवरी के मौके पर यौम जमहूरिया के लिए मौलाना हाफिज़ मोहिद्दीन साहब दावत दिए थे, जिस पर हम लब्बैक कह के पहुँचे। अफजलपुर के उलमा हुफ़ाज़ सब मिलकर आए। हमें इस प्रोग्राम में शिरकत करके बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मासूम बच्चियाँ लड़कियाँ उनके ऊपर बड़ी मेहनत करके प्रोग्राम बयानात वगैरह नात नज़म वगैरह सुनाए। इससे हम सबको बड़ी खुशी हुई और यौम जमहूरिया के मौके पर हमें आज कुछ सबक मिला हमें और कुछ अच्छा देखने और सुनने के लिए मिला। और हमारे हाफिज़ मोहिद्दीन को बहुत सालों से हम जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ती है। हाफिज़ मखदूम साहब, कमरुज़्ज़मा, रियाज़, अल्ताफ़ भाई और सब मिलकर हम आते जाते रहते हैं। और इस मदरसे को तकरीबन चालू करके भी 10-15 साल हो गए। गांव में भी पढ़ाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से आना जाना था, ताल्लुकात थे गांव में, जहाँ पे गौर के में जामिया मस्जिद के अंदर इब्तिदाई में मकतब और तालीम मदरसा क़याम ताम के साथ चलता था। उस वक्त से बड़ी तकलीफ़ें हालात पेश आते, फसादात होते, लड़ाई झगड़े होते, फिर भी अल्लाह ताला ऐसे मुश्किल वक्तों में भी क्या है इनके साथ हिंदू भाइयों की, मुसलमानों की, हर किसी की मदद रही है, जिसकी वजह से गांव में से निकलकर मदरसा एक बयाबान जंगल के अंदर आकर बसा हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि तकरीबन 10-12 साल से भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी तालीम हो रही है। इसलिए कि अल्लाह ताला इस मदरसे को नज़र बद से बचाए।